Hello everyone, I am Professor Satish Tavade, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Navasahadri Education Society's group of institutions, Naigaon, Pune. Our institution is an NAAC A-grade accredited institution. I welcome you for this free online series of sessions on the topic Intellectual Property Rights, that is IPR in India. In the previous sessions, you have learned about what is patent filing process and copyrights. And in today's session, you will learn about the trademarks. I will start the session. Okay, I will speak in English as well as a little bit Hindi language also I will use, because some may have communication problem, English language communication problem. So I will use little bit Hindi language also. So contents goes like this. What is trademark? Objectives of trademark, functions of trademark, types of trademark, registration process and renewal of registration, trademark law, offenses and penalties. Okay, so what is trademark? A trademark is a word, phrase, symbol, design, or a combination of these that identifies and distinguishes the source of goods of one party from those of others. This is the definition of trademark. अगर सिंपल भाषा में बोलनी है ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है, तो ये कोई एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट उसके वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये एक नेम हो सकता है या लोगो हो सकता है, टैगलाइन हो सकता है या स्लोगन हो सकता है। और ये किस लिए यूज करते हैं? दिस इज ब्रांडिंग पर्पस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज द ट्रेडमार्क। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिंबल दिखा है यहाँ पर। व्हाट इज दिस लोगो? ये लोगो या पिक्चर या ये डायग्राम और या सिंबल, ये अगर आप देखेंगे तो इससे क्या समझ में आएगा आपको? इमीडिएटली इसको कोई देखेगा तो इमीडिएटली उनको ऑडी कंपनी का याद आ जाएगा। और ये दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर, ये जो पिक्चर है, ये जो ये कौन यूज करता है? ये दिस इज द लोगो यूज्ड बाय द एप्पल कंपनी। और यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है गिवन हियर, इट इज कोलगेट। सो बाय सीइंग दिस वन कोलगेट, you will come to know about the product Colgate, its company, everything you will come to know about the this Colgate product. Okay, so this is called as a trademarking. Now, what are the objectives of trademark? The product to protect the rights of person who manufacture and sells goods with distinct trademarks, to prevent unfair competition by protecting the use of a symbol, word, logo, slogan, design, domain name, etc. that uniquely distinguishes the goods of or services of a firm. These are the objectives of the trademark. So इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए दिस इज वन पर्सन हियर, एक आदमी है, इन्होंने एक संस्था स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई बिजनेस ही हैज स्टार्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड। कई साल काम करने के बाद इनके मार्केट में इनका कंपनी, इनका प्रोडक्ट ब्रांडेड बन चुका है। तो यहाँ पर एक दूसरा आदमी है, अनदर पर्सन, he started a business, एंड ये क्या कर रहे हैं? ये इनका जो पहले का इनका ब्रांड नेम है, उनका नेम, उनका प्रोडक्ट वो यूज करके कॉमर्शियलाइज करना चाहता है। he wants to earn money by doing so, but it is not possible. He cannot do this.
For this one, uniqueness in trademarks has to be maintained, and this is illegal. अगर ये ऐसा करता है तो फिर वो illegal हो जाता है, and it is punishable. So इसलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज और प्रोडक्ट, उसके लिए एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है। मींस वो ट्रेडमार्क एक सिंबल के फॉर्म में हो सकता है, कुछ नाम हो सकता है, कलर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कुछ शेप हो सकता है, कुछ डिजाइन हो सकता है। दैट इज यूनिकनेस। वो यूनिक फीचर उसी कंपनी, उसी प्रोडक्ट या उसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है और उसका ओरिजिनलिटी मेंटेन किया जाता है, और उसका ओरिजिनल क्रेडिट जो शुरुआत किया है उनसे, वो दैट विल बी रिजर्व्ड बाय दैट कंपनी और दैट पर्सन ओनली। टू मेंटेन दिस trademarking is done. This is the main objective, main purpose of doing the trademark. Now functions of trademark. ये ट्रेडमार्क क्या फंक्शन करती है? इट आइडेंटिफाइज द ओरिजिनलिटी। ट्रेडमार्किंग से क्या होता है? ओरिजिनलिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द ओरिजिनलिटी and helps in maintaining the quality or understanding the quality of goods, and helps in advertising the goods or services, and to create an image for of the goods or services on the customers. So it functions like this. Means कोई भी फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा मोटर्स कंपनी के कुछ लोगो है। सो वो क्या करता है? वो लोगो देखने से आपको टाटा कंपनी की ओरिजिनलिटी समझ में आता है, अरे ये टाटा कंपनी की प्रोडक्ट है, ये टाटा कंपनी की कार है। देन क्वालिटी, उसके क्वालिटी के बारे में आप पता कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ मालूम हो जाएगा टाटा मोटर्स की क्वालिटी क्या रहती है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर इमेज, एक इमेज भी तैयार होता है कस्टमर्स के माइंड में बाय सीइंग दैट ट्रेडमार्क। सो इट हेल्प्स इन डूइंग दीज थिंग्स। Okay, now we'll see types of trademarks. very few I have highlighted here. There are so many types are there. Letters, mainly we are classifying into two categories: conventional trademarks and unconventional trademarks. So in conventional type we will see letters, words, pictures, and in unconventional type color trademarks, sound marks, packaging trademarks, shape of goods, etc., etc. Many are there. Just few I have highlighted here. अभी एक एक एग्जांपल देके हम सीखेंगे। अभी लेटर्स, इस डायग्राम में आप देखो, ये जो लेटर है यहाँ पर एफ स्मॉल एफ, कोई भी इस फीचर को, इस अल्फाबेट को और लेटर को देखेंगे तो इमीडिएटली विल कम टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ए सिंबल फॉर व्हाट? फेसबुक, और ट्रेडमार्क फॉर फेसबुक। और ये लिखा है HP। by seeing this one immediately one will understand it is logo for HP company. So ट्रेडमार्क एक सिंगल अल्फाबेट वर्ड भी हो सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्ड में अभी देखिए यहाँ पर याहू लिखा है, याहू, कोका कोला, गूगल, BBC, WW, that is Volkswagen कंपनी, VW, Volkswagen। ऐसे वर्डिंग्स भी हम लोग ट्रेडमार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल से वर्ड्स के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। पिक्चर्स, सी दिस पिक्चर, एप्पल। सो दिस इज द लोगो फॉर एप्पल कंपनी। दिस पिक्चर हियर, दिस इज फॉर पेप्सी कंपनी, पेप्सी प्रोडक्ट, पेप्सी कंपनी, इट इज यूजिंग दिस सिंबल। इफ यू कम हियर, दिस इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये जो आप डायग्राम देखेंगे इस पिक्चर, नथिंग इज रिटन हियर, अल्फाबेट भी नहीं है, वर्ड भी नहीं है, जस्ट ए पिक्चर है। बट ये पिक्चर देखते ही आपको, आपके माइंड में क्या आएगा? दिस इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट विल सी अबाउट द कलर्स। कलर, अभी एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर, एक कैडबरी चॉकलेट है, कैडबरी डेयरी मिल्क, दिस इज अ चॉकलेट। सी इट्स कवर, रैपिंग हियर। इसका कलर देखिए, आप इंडिया, थ्रू आउट इंडिया में कहीं पे भी, कोई भी मार्केट, कोई भी शॉप में जाइए आप लोग, तो आपको इसका जो कवर है, उसका कलर है, उस पे जो लिखा हुआ राइटिंग्स है, वो सेम रहेगा, वो सेम ही मिलेगा। दैट इज अ यूनिकनेस।
सो ये आपका, इससे आपका इसका क्वालिटी पता चलता है और इसका यूनिकनेस पता चलता है। ये एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्प होता है और इसका ओरिजिनलिटी, इसका ओरिजिनल हकदार कौन है वो मालूम होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, शेप ऑफ गुड्स, ये भी ट्रेडमार्किंग कर सकते हैं शेप की। सो ये दिस एग्जांपल इज गिवन फॉर कोका कोला। कोका कोला बॉटल, यू सी हियर, it's a shape, it's the outline of this bottle will somewhat designed by that company. No other product or no other company will use this design or this shape for their purpose because it is uniqueness. So it is for Coca-Cola. So this is also an example for trademarking. यहाँ पर देखिए पैकेजिंग, ये पैकेज है, दिस इज मेडिकल इक्विपमेंट, open here, please do not pressure like this. Some open here, writings is written here. So this is unique feature he has written on the packaging cover. This is used by particular medical manufacturing instrument manufacturing company. They will use, and this they have made it as a registered and they have made it as their trademark. Sound हो सकता है, ये भी symbol है यूज करने के लिए. Like this. So these are all examples of the trademark. So trademark एक letter हो सकता है, alphabet हो सकता है, word हो सकता है, color हो सकता है, shape हो सकता है, packaging का हो सकता है. So अलग-अलग organizations as per their at the point of starting their business or enterprises, they have designed and they have registered in registered and then they are using for their branding purpose. Okay, now we'll see about the registration process. What is registration process? So starting, कोई भी business start करना चाहता है, individual या फिर in a team, they have to do the registration for their company name, their logo, whatever it is, they have to do its registration in Government of India. That is IPR cell is there, that is called intellectual property rights cell. There you have to register, do the registration. So individual or startup or small enterprise, they can register, and some documents are required for this one. What are those documents? Business name and business logo is a photocopy, name, address, nationality proof. These all things they have to submit. And for processing it takes about 1.5 to 2 years. 1.5 से 2 साल तक टाइम लग सकता है ये सारे प्रोसेस होने के लिए, और ये ऑनलाइन भी प्रोसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं. इसके लिए कुछ मिनिमल एज पर गवर्नमेंट रूल्स, कुछ मिनिमल इसका फीस रहेगा, वो फीस पे करना होगी. और ये ट्रेडमार्किंग के लिए देयर आर 45 क्लासेस आर देयर. 45 अलग अलग तरह के क्लासेस है. मींस 1 to 35 क्लास इज यूज्ड फॉर गुड्स के लिए यूज किया जाता है, और 36 to 45 क्लास ये सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है. यहाँ पर मैंने एक एक एग्जांपल दिया है, एक गुड्स के लिए और एक सर्विसेज के लिए. एक क्लास 30 रिप्रेजेंट्स दी, इट रिप्रेजेंट्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स. ये कॉफी का है, ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेडमार्किंग के लिए यूज किया जाता है ये क्लास. और क्लास 41 कोई एजुकेशन सिस्टम है, उनका कुछ ट्रेडमार्किंग के लिए रजिस्ट्री करने हैं, तो क्लास 41 में उनको रजिस्ट्री करना होगा. ओके, so once you applied for registration, you can use this as TM. It is locked here. लॉकिंग इसका मतलब क्या है? उन्होंने कुछ नेम, लेटर, कलर और लोगो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है, उसका मीनिंग होता है. एंड देन टिल द फाइनल प्रोसीजर्स आर डन, they have to use, they can write TM and they can use it. And once it is registered, they can use this symbol R until the final procedures are over. Okay. Now finally we will see about the laws, offenses and penalties. Trademark law in India will protect all types of trademarks. मतलब क्या है? एक इंडियन के एक रूल से लॉ है, ये IPR सेल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे एक संस्था है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर आता है ये सारे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सभी उसके अंडर आता है. सो उसके कुछ लॉज है वो मेंटेन करता है, हर ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन वो करती है.
it will be punishable for falsely applying the trademark to goods or services. अगर कोई falsely apply करता है तो it has to be punishable. It will be punishable. Minimum 6 months of imprisonment, which may extend to 3 years. Minimum fine of rupees 50,000 and may extend to rupees 2 lakh rupees. Means 6 months से लेकर 3 years तक imprisonment की सजा हो सकती है और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक फाइन भी लग सकती है. किसको लगेगा? जो अगर दूसरे कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन उनकी जो ट्रेडमार्क है और वो ट्रेडमार्किंग अपने ब्रांडिंग के लिए उसका कॉपी करेगा और वो यूज करेगा तो ये पनिशेबल है. इट इज अगेंस्ट द लॉ. ही कैन नॉट डू दिस वन. होप यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रेडमार्क. So we are conducting such online series of sessions on technical topics or career point of view, career oriented topics, or for giving extra knowledge for technical students, technical field students. Many sessions we are conducting. You can contact us. Keep attending such sessions. For any queries and difficulties, you can contact us. We are always ready to help you. Thanks for watching. I will conclude here. Thank you very much once again.